Hello everyone, welcome to Dr. MDS Academy. Today in this lecture we are going to solve one conventional question asked in the engineering service examination based on the topic length of path of contact and then after how you can find out contact ratio, then after in order to avoid the interference. So based we are going to utilize this formula. Okay, so let's solve that. See, this question has been asked in 2025, latest question, previous year, of 12 marks. What is in the question is a pair of 20-degree full depth involute per gear are in mesh. Okay, so we have given here what are the given terms. Given terms are phi, pressure angle given is 20 degree. Larger gear has 48 teeth, means capital T is given 40, whereas the pinion has 12 teeth. Small t value, pinion has 12 teeth. Okay. Modular is m value given is 10 mm. Okay. Determine the reduction in addendum of the gear to avoid the interference. And second in this is contact risk. In 6 marks, this first part and second part is of 6 marks. Okay. So how can you solve this type of problem? See, you had seen that we are having this pitch, okay, for gear, okay, and another this was for what? This was for the pinion, okay, and in between that we are having a this O1 for pinion and O2 center point in center of the circle for the gear, okay. Now here we were having a what? This was what? This was the common normal, okay, and along with that we were having a common tangent also, okay. This was common tangent, okay, and the angle was phi. इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक। ये देखो मेरे को व्हील के ऊपर, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग को जो कट कर रहा है, दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर, ये जो ऐसे ये हम लोगों का हो जाता है बेस सर्कल, ठीक है, और ये हम लोगों का हो जाता है यहाँ से टच कर रहा है, दिस इज टेंजेंट, अगेन दिस इज आवर व्हाट, बेस सर्कल, was our pitch circle, was our pitch, ठीक है। नाउ हम एडेंडम क्या होता था? एडेंडम ये वाला गियर के लिए एडेंडम ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये किसके लिए? गियर के लिए। इसी तरीके से हम लोगों का पिनियन के लिए एडेंडम ये वाला यहाँ से बेस सर्कल है और ये कॉमन नॉर्मल, ओके, and this is our addendum,
addendum. Okay, this was all again addendum. Addendum for gear and addendum for pinion. ओके, तो O2 से लेकर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे डेरिवेशन, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको इन पॉइंट बोलते थे. सिमिलरली वी वर ड्रॉपिंग ए लाइन ऑन द व्हाट, ऑन द doing the same thing. This was M on the pinion, ठीक है, और हम लोग का क्या करते थे, ए पॉइंट ये था, दिस वाज आवर के पॉइंट, हियर दिस वाज के एंड दिस वाज व्हाट, L, and this P was the pitch point. Okay, so length KPPL. Okay, KL was the length of path. Okay, so हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, we have to find out what is the reduction in addendum of the gear to avoid the interruption. So addendum you have to find out on gear, on gear, ठीक. तो कैसे निकलेगा यहाँ पर, मीन्स ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है गियर के लिए, इस गियर के लिए हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, दिस डिस्टेंस क्या निकलेगा, O2N, O2, ठीक है, यहाँ से हमें N तक जाना, M तक जाना है, ठीक है, तो कैसे आएंगे हम लोग, कैसे आएंगे हम लोग, ये यहाँ से लेकर M तक जाना है मेरे, ठीक है, तो मैक्सिमम एडेंडम आएगा क्या यहाँ पर, मैक्सिमम एडेंडम, ये एडेंडम है, यहाँ से ऐसे 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 पास करेगा, दिस इज अनदर एडेंडम बट मैक्सिमम एडेंडम, दिस विल बी आवर मैक्सिमम एडेंडम, ठीक है, इस एडेंडम सर्कल के मैक्सिमम से फिर this is also addendum for the gear, this is also, but this is our black one is the maximum addendum, beyond that interference will exist. Okay, इसे ही निकालना है ताकि अवॉइड द इंटरफेरेंस. तो O2 से लेकर M तक का डिस्टेंस कितना हम लोग निकाल सकते हैं, O2 से लेकर M तक का डिस्टेंस, ठीक है, तो एडेंडम, एडेंडम on गियर या मैक्सिमम एडेंडम, ठीक है, मैक्सिमम निकाल रहे हैं ना, O2 से ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन O2 से M मैक्सिमम एडेंडम, व्हाट इज दैट, इज इक्वल टू O2 से M, ये गियर के लिए मैं कर रहा हूँ, गियर के लिए, इसलिए सिर्फ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन O2 एंड M, ना कि O1 से लेकर N तक करना, ओपिनियन के लिए हो जाए, ठीक है, O2 से M माइनस माइनस O2 से P, दिस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आएगा हमें मैक्सिमम देगा, क्या, मैक्सिमम एडेंडम, ठीक है. अब देखो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, कैपिटल T, नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर, स्मॉल t नहीं, ठीक है, दो चीज पढ़े थे, एक स्मॉल t पढ़े थे, क्या था फॉर्मूला, ट्वाइस AP, फ्रैक्शन वैल्यू था, फ्रैक्शन वैल्यू था, तो इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, रूट 1 + G ब्रैकेट G+2 साइन स्क्वायर 5 - 1, ये किए थे ना, स्मॉल t का क्या किए थे, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, ये नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन है, इसीलिए p है, ट्वाइस AW
wheel के लिए या gear के लिए W की जगह we can put G also. Okay, so what is that? 1 plus 1 by G bracket 1 by G plus 2 sin square 5 minus 1. ठीक है, ये ऐसे पढ़े। डेरिवेशन में रिकॉल करो m इंटू ए डब्ल्यू, ठीक है, इसी को किए थे ना, ओ टू एम माइनस ओ टू पी, इसी को तो किए थे, है ना। अब यहाँ पर देखो ओ टू एम, ठीक है, माइनस वो ओ टू पी है क्या, यहाँ पर ओ टू पी है क्या, हियर दिस ओ टू से पी तक क्या है, रेडियस क्या है, आर है ना, दिस इज और व्हाट, आर ना। So we know that we know what we know, PC is equal to pi t upon t, ठीक है, is equal to pi into m, ठीक है, we know that what is d m here, m is equal to d upon t pi into m का, इन दोनों रिलेशन को यूज करते हैं, ठीक है, m is what, d upon t मॉड्यूल, तो पाई डी अपॉन टी इक्वल टू पाई इंटू एम, पाई से पाई कैंसिल आउट, so d you are getting finally is m into t, so r is equal to m into t upon 2, diameter in terms of radius, here it is in terms of d, okay, so radius को मैं ऐसे लिख, O2P है क्या, O2P तो है ये, रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज व्हाट, कैपिटल आर इज व्हाट, O2 से लेकर P तक ही तो है, सर्कल तक का रेडियस, तो कैन आई राइट हियर mt upon 2, mt upon 2, the same thing I have put over here, okay, तो धीरे धीरे रिकॉल करो क्या हम लोग पढ़ें, तो we will be using here same thing, O2P, O2P m into t, यहाँ पर ये वाला क्या था, ये मैक्सिमा अडेंडम क्या था, मैक्सिमा अडेंडम वाज m into ए डब्ल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला यहाँ पर बैठाएंगे और ओ ओ टू एम यहाँ से आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते थे, m इंटू टी, क्योंकि m इंटू ए डब्ल्यू, m से m कैंसिल आउट करते थे डेरिवेशन, तो m इंटू टी अपॉन 2 यहाँ पर, तभी तो -1 आएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता था, यहाँ पर क्या आता था हम लोगों का, ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई जी, ब्रैकेट 1 बाई जी प्लस 2 साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 5 माइनस बाहर में 1, ठीक है, ये आता था मैक्सिमम अडेंडम, m का वैल्यू हाउ मच गिवन 10, पुट ऑल द वैल्यूज 10 इंटू कैपिटल T 48 अपॉन 2, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस जी, जी यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, कैपिटल T अपॉन स्मॉल t 48 upon 12 will be getting 4 ja 40, 1 by 4 bracket 1 by 4 plus 2, ठीक है, साइन स्क्वायर 5 how much 20 degree minus 1, how much you are getting, how much you are getting, calculate it, 10 in 1 plus 0.25 into 0.25 plus 2, ठीक है, into साइन cos स्क्वायर 5 ना, सॉरी साइन स्क्वायर 5 sin 20 into sin 20, you are getting this much value -1 into 10 into 48 divided by 2, so you are getting answer out of calculation
7.777 mm. What is the max? This is the maximum addendum from this is the distance 7.7. Okay, this is the maximum. But how much addendum given? पहला पार्ट को सॉल्व करने के लिए रिडक्शन कितना? तो मॉड्यूल गिवन इज 10 mm, मीन्स अडेंडम ही दे रखा है 10 mm. ठीक है, गिवन. तो रिडक्शन फाइनली यू नोट डाउन रिडक्शन. The reduction in addendum equal to module 10 minus 7.77. Okay, 10 is how much? क्वेश्चन में दे रखा है मॉड्यूल इज 10. दिस इज द मॉड्यूल बट कैलकुलेटेड वैल्यू इज 7. ठीक है, तो कितना रिड्यूस हो गया? माइनस कर देते हैं 10 माइनस 7.7. विल बी गेटिंग आंसर 2.229 mm. So this will be our final. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. ठीक, नाउ द सेकंड वन, कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होगा? ठीक, तो कॉन्टैक्ट रेशियो के निकालने के लिए क्या हम लोग करते हैं? कॉन्टैक्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं? फिजिकल लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन लेंथ ऑफ arc of contact ठीक है, अपॉन सर्कुलर पिच. ओके, लेंथ ऑफ इसी को लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं. अब लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? ये होता है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट. लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, अपॉन लेंथ ऑफ अपॉन कॉस फाई, इसी को तो बोलते हैं. ठीक है, इसी को द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट शॉर्ट फॉर्म. सी हियर, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट को कैसे लिख सकते हैं? के एल. सी इन द फिगर. इन द फिगर, के से लेकर ठीक है एल तक का डिस्टेंस को दिस डिस्टेंस, इसी को तो बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट. तो के एल इज इक्वल टू ए पी प्लस ई एल. फॉर्मूला क्या होता है? रूट आर ए का स्क्वायर मीन्स दिस मच आर ए अडेंडम. ठीक, दिस वन अडेंडम किसका? व्हील का. ठीक है, माइनस आर स्क्वायर. ठीक, यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाता है, कॉस स्क्वायर फाइव. ठीक, प्लस प्लस है तो प्लस करो. आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर साइन फाइव. ये होता है फॉर्मूला. अब देखो यहाँ आर ए निकालना है, कैपिटल आर निकालना. तो यहाँ पर देखो मॉड्यूल दे रखा है m इज इक्वल टू 10. तो हियर m इज इक्वल टू 10. क्या इज इक्वल टू लिख सकते हैं? d अपॉन टी फॉर्मूला होता है. बड़ा वाला गियर के लिए कैपिटल टी अपॉन टी, पिनियन के लिए स्मॉल अपॉन टी. दोनों का मॉड्यूल सेम होगा बिकॉज दे आर इन बोथ कॉन्टैक्ट. सो 10 इक्वल टू कैपिटल डी वी डोंट नो, 2r लिख सकते हैं क्या सर्कल का रेडियस के फॉर्म में. गियर के लिए नंबर ऑफ कैपिटल टी कितना दे रखा है? 48, स्मॉल टी 12. 48 ये 2 स्मॉल आर. ठीक है, यहाँ से आर आ गए, यहाँ से आ गए. हाँ, ये स्मॉल टी होगा.
ठीक है, कितना दे रखा है स्मॉल टी गिवन इज 2। So finally capital R you are getting is 480 divided by 2, 240 mm, है ना। स्मॉल r कितना आ रहा है 10 इंटू 12 60 mm, ठीक है, ये आ रहा है। और अडेंडम बराबर क्या है, अडेंडम बराबर ही तो मॉड्यूल होता है जो कि 10 mm दे रखा है, 10 mm दे रखा है ना, तो 10 mm इज इक्वल टू अडेंडम ही तो होता है। तो यहाँ से आर ए निकल जाएगा क्या, कैपिटल आर प्लस एम निकालेंगे, तो कैपिटल आर इज 240 प्लस 10 50 यू आर गेटिंग अडेंडम ऑन गियर दिस फ्रॉम O2 से लेकर अडेंडम तक का डिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली also RA is small r plus m, small r is 60 and module is 10 70 mm। हमें आ गया यहाँ पर सारा वैल्यू, ठीक है, तो हम लोग आ गया तो फिर हम लोग कर सकते, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर, पुट ऑल इन, ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू रूट आर ए का स्क्वायर कितना आया 250 का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर 240 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, फाइव गिवन इज 20 डिग्री, एंगल गिवन इज 20 डिग्री, है ना, 20 डिग्री इज द एंगल गिवन, ठीक। सिमिलरली यू विल हैव टू फाइंड आउट प्लस क्या है डिस्टेंस, ठीक है। स्मॉल आर ए कितना निकाला हूं मैं, स्मॉल आर ए कितना निकाला हूं, स्मॉल आर ए 70, 70 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर ए, ठीक है, सॉरी स्मॉल आर विच 60, 60 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, 20 डिग्री माइनस कैपिटल आर 240 प्लस स्मॉल आर 60 साइन 20 डिग्री, calculate, you will be getting length of path of contact, so 250 square minus 240 का square into cos 20 into cos रूट ऑफ, तो ये आ रहा है मेरे पास कितना आ रहा है 107.879 प्लस 70 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर इंटू कॉस 20 इंटू कॉस, so root of this you will be getting 41.48, ठीक है, 6 then minus 240 plus 60 300 into sine 20 degree, so 102.606, okay, ये कैलकुलेशन के बाद you are getting, so then after the final calculation you are getting is 107.879 plus 41.486 minus 102.606,
46.606। ठीक है, क्या आ रहा है 46.759 लेंथ ऑफ पाथ ऑफ। नाउ द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट जानने के बाद यू कैन डिटरमाइन लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जानने के बाद नाउ length of arc of contact is equal to length of path of contact upon cos phi। cos phi हमें मालूम है, ठीक है। यहाँ से लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन cos, है ना। यहाँ से क्या आ गया 46.759 अपॉन cos 20 डिग्री, तो डिवाइडेड बाई cos 20, तो आंसर कमिंग इज 49.759 mm लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। डायग्राम में क्या आएगा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ऑन द पिच सर्कल लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक का होता है, देखो पिनियन के लिए ये यहाँ पर पिच सर्कल के ऊपर में ही देखते हैं, ये वाला यहाँ से स्टार्ट इंगेजमेंट, इस इंगेजमेंट यहाँ तक, ये हो गया जी पॉइंट, ये हो गया एच पॉइंट, ये पिनियन के लिए। सिमिलरली यू कैन सी इन द ऑन द गियर आल्सो, फ्रॉम वेयर टू वेयर, पिच सर्कल के ऊपर यहाँ से लेकर, ठीक है, जो कि सपोज एच जे हो गया, ठीक है, ये पॉइंट, और ये हो गया एल, ठीक है। एल मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू बिगनिंग ऑफ द एंगेजमेंट ऑन द पिच सर्कल, ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ कॉन्टैक्ट रेशियो निकाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट ratio means how many number of teeth are in contact. So the expression given was length of arc of contact upon circular pitch, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट 49.5759 ओके mm upon pc, pc means pi d upon t, pi d upon t, d upon t, d upon t को ही तो m बोलते हैं, तो डायरेक्टली यू कैन पुट हियर, तो इट्स यूनिट इज mm, का यूनिट इसका यूनिट कट गया, कॉन्टैक्ट रेशियो का यूनिट कुछ भी नहीं होगा, यानी कि नंबर्स के फॉर्म में। तो 49.759 अपॉन पाई इंटू हाउ मच एम गिवन, क्वेश्चन में एम का वैल्यू कितना दे रखा था, एम का वैल्यू यहाँ 10 दे रखा है, ओके, तो 10, तो हाउ मच यू आर गेटिंग आफ्टर कैलकुलेशन 49.759 अपॉन पाई on 10, so 1.1584 is the contact ratio, okay. So this is our answer. So this type of problems you can solve, okay, and this question was asked in 2025 in conventional question, okay, carrying 12 marks. Thank you all.